Good morning class. Today I will teach you work power energy. In this class first we will define your work and condition of work. ये दो चीज पर इम्पोर्टेंट पर हम जोड़ देंगे कि वर्क क्या होता है, उसका क्या कंडीशन है. तो व्हाट इज वर्क? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, force is applied on the body and displacement occur along the direction of force work is said to be done. अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाया, फोर्स के कारण जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हम समझेंगे कि वर्क हुआ. मानते एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इस पर F फोर्स लगाया मेकिंग थीटा एंगल विथ हॉरिजॉन्टल. देन F हैज टू कंपोनेंट, F cos थीटा, F sin थीटा, नॉर्मल रिएक्शन एंड mg. Due to these forces and F sin theta mg is not responsible for the displacement of the block along horizontal direction. The only force is F cos theta, so the block is displaced by ds. Let there be a body having mass m. F force is applied on it making theta angle with horizontal. So F has two component. First, F cos theta along x axis and F sin theta along y axis. Due to this force, the block is displaced by ds. ब्लॉक ds से डिस्प्लेस हुआ. Then n F sin theta and mg is not responsible for the displacement of the block by ds along x-axis. The only force factor is F cos theta. The W is equal to होगा F cos theta into ds. The force is applied on the body and displacement occur along the direction of force. The work is said to be done. Numerically it is equal to the product of force and displacement. So W is equal to F dot ds. Hence we can say dot product of force and displacement is called work done. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट को कहा जाता है वर्क डन. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नाउ W is equal to F ds, dW is equal to F ds cos theta. तो if theta is 0, dW is equal to F ds cos 0, cos 0 1. This is called positive work. Pulling the table. This is the example of positive work. If theta is 180, dW is equal to F ds cos 180. That is minus FDS. This is called negative work. Generally, work done by friction. The
that it doesn't mean the work done by friction is always negative. Work done by friction may be positive. Work done by friction may be positive. By friction may be positive. Positive हो सकता है. If theta is 90 degree, dW is equal to F ds cos 90. Cos 90 is equal to 0. This is called zero work. There are three conditions of zero work. Three conditions of zero work. First, when force is perpendicular to the displacement. Displacement का perpendicular हो. जैसे कुली is weighing some load on his head and moving in horizontal direction, the work done against gravity is zero. For example, जैसे एक कुली है, अपने माथा पर कुछ लोड रखे हुए और इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसका वेट नीचे लग रहा है और बॉडी इधर डिस्प्लेस हुआ, तो cos थीटा 90 है, इसलिए 0. तो व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट. दूसरा एक और हो सकता है, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सेंटीपिटल फोर्स है और इसका फोर्स बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन बाय सेंटीपिटल फोर्स इज आल्सो 0. दूसरा है कि इफ द बॉडी इज मूविंग विथ व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी इज इन रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या तो रेस्ट में रहे या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो, तो भी बॉडी का वर्क डन 0 होगा. और तीसरा है इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज 0, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज 0. मानते ए बी से गया, बी तक गया और फिर बी से ए तक आया, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, सो वर्क इज ऑल्सो 0 बाय द कंजर्वेटिव फोर्स. तो ये तीन तरह का फोर्स होता है. वर्क होता है वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. SI यूनिट ऑफ वर्क जूल. वर्क का SI यूनिट जूल होता है. CGS यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग. 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग. It is a scalar quantity, so it is added algebraically. So it is added algebraically. स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए ये algebraically ऐड किया जा सकता है. तीसरा है डायमेंशन, इसका होता है ml स्क्वायर t माइनस 2. दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क. अब इस वर्क से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है. पहला फैक्ट है कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हो रहा उस फोर्स के कारण, तो क्वेश्चन है कि क्या दूसरे फोर्स के कारण वर्क डन हुआ उस डिस्प्लेसमेंट पर. जैसे क्वेश्चन है कि फैक्ट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑन वर्क. फैक्ट्स ऑन वर्क. वर्क पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. पहला क्या है, बॉडी इज डिस्प्लेस्ड by a force, then displaced by force, then
work is also done by another force which is not responsible for this displacement. जब हम इस फैक्ट्स को बताते हैं किसी लड़के को, तो वो बोलता कि दिस इज नॉट पॉसिबल, वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर नहीं रहा है फिर भी वर्क डन हो रहा है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? तो हम एक एग्जांपल समझाते हैं उसको कि दिस इज द डस्टर and a force is applied by this palm in upward direction is in this way. So this duster is displaced from that position to this position by a force applied by me, but again gravity also apply on this force and the displacement does not occur by that gravity. फिर भी वर्क डन होगा ग्रेविटी के कारण, माइनस mgh होगा ना, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, या कह सकते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फैक्ट्स, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा है कोई और बॉडी और वर्क डन कर रहा है अर्थ। दूसरा वो भी कर रहा है, हम नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहा, लेकिन बिना दूसरा फोर्स नहीं डिस्प्लेस कर रहा है फिर भी हो रहा है। जनरली निगेटिव वर्क इज डन बाय दिस, निगेटिव वर्क इज डन बाय दिस फोर्स and work done on the system, work done on the system, सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाता है इसमें। दूसरा फैक्ट है वर्क नेवर बी फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए वर्क डन नहीं होता। सो दिस इज द रीजन वर्क नेवर बी इंस्टेंटेनियस, नेवर बी इंस्टेंटेनियस, वर्क कभी भी इंस्टेंटेनियस नहीं हो सकता है, या इंस्टेंटेनियस वर्क करके कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्क डन इज फॉर ए इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज फॉर ए इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का एक इंटरवल के लिए वर्क डन होता है। चौथा पॉइंट है कि वर्क डन डज नॉट डिपेंड, वर्क डन फॉर ए गिवन डिस्प्लेसमेंट does not depend on, for a given displacement के लिए does not depend on nature of motion, whether the body is moving with uniform velocity, uniform velocity, accelerated or retarded, वर्क डन होगा, उतना ही होगा। फॉर ए गिवन डिवीजन डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मोशन, मोशन के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। पांचवा क्या है? वर्क डन फॉर ए गिवन डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन फॉर ए गिवन डिस्प्लेसमेंट, फॉर ए गिवन डिस्प्लेसमेंट is independent of motion, whether it is moving, nature of motion, whether it is moving slowly or fastly, that is, it is independent
इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। ये 5 हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सब इंपॉर्टेंट है कि पहला पॉइंट था कि वर्क डन बाय द वर्क डन कोई फोर्स द्वारा, कोई बॉडी पर फोर्स लगा रहा है, एक F1 फोर्स लगा रहा है और F2 भी फोर्स लग रहा है उस पर, लेकिन F2 के कारण बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुआ, फिर भी F2 के कारण वर्क डन होगा। ये पहला पॉइंट है। वर्क डन नेवर फॉर ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए वर्क डन नहीं होता है, इसलिए इंस्टेंटेनियस वर्क डन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वर्क डन फॉर ए इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है कि 0 से लेकर D तक गया, 0 से लेकर ये यहाँ तक गया। वर्क डन फॉर ए गिवन डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मोशन, कि वो यूनिफॉर्म वैल्यू चल रहा है कि रिटार्डेड चल रहा है कि एक्सेलरेटेड चल रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करता। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है ये, वो फास्टली चल रहा है स्लोली चल रहा है किसी गिवन डिस्प्लेसमेंट के लिए, इससे मतलब नहीं है, चला उतना, इसलिए टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 5वां। छठा पॉइंट क्या है? वर्क डन फॉर स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स may be positive on one body and negative for other body। मानते एक ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m है, एक और ब्लॉक है जिसका मास m है, नीचे स्मूथ है, इसके कारण फ्रिक्शन है, म्यू है। अब ये F फोर्स लगाने के कारण बॉन्ड टूटा नहीं, दोनों एक साथ चला, दो बोथ आर मूविंग टुगेदर, बोथ आर मूविंग टुगेदर सिंस F इज ग्रेटर देन F। तो इस ब्लॉक पर अगर इसको ऐसा खींच रहे हैं तो M पर फोर्स लग रहा है आगे की ओर Fs, और मानते ही ये D डिस्प्लेस हुआ तो इसका वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा Fs इंटू D, Fs बराबर म्यू mg D। ये पॉजिटिव होगा क्योंकि जिधर बॉडी चला उधर ही डिस्प्लेस हुआ, लेकिन इस बड़ा वाला ब्लॉक पर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगा और फिर भी वो डिस्प्लेस हुआ, तो W इज इक्वल क्या होगा, माइनस Fs इंटू D। तो कितना हो जाएगा, माइनस Fs म्यू mg D हो गया। Fs बराबर होता है म्यू n और n बराबर है म्यू mg, तो Fs इज इक्वल टू होगा म्यू mg। तो ये म्यू mg एक के कारण पॉजिटिव वर्क डन हुआ, एक के कारण नेगेटिव वर्क डन हुआ। तो वर्क डन फॉर ए स्टैटिक फ्रिक्शन मे बी पॉजिटिव ऑन ए बॉडी एंड नेगेटिव ऑन अनदर बॉडी, बट नेट वर्क डन फॉर ए सिस्टम इज ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 7वां क्या है, वर्क डन ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क डन ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन, kinetic friction for a system may be for a system never be zero, कभी भी जीरो नहीं होता है। अब मानते हैं एक बॉडी है जिसका मूव कर रहा है, इसका फ्रिक्शन म्यू है, म्यू 1 है और इस पर ये चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और उसके ठीक नीचे एक और बॉडी है, ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, नीचे स्मूथ है। तो इसका फ्रिक्शन कितना, इसका कितना हो जाएगा, Fs निकालेंगे। Fs इज इक्वल टू म्यू n होता है, म्यू mg होता है, इसका m मान लेते हैं, इसका म्यू mg हो गया। अगर ये अलग डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि अलग वेलोसिटी चल रहा है तो इसका हो जाएगा Fs इज इक्वल टू, इसके आगे लगेगा Fs और इसका इधर की ओर F के लगेगा,
एफ के आगे लगेगा, इस पर नीचे पीछे के लगेगा एफ के। तो क्या होगा, वर्क डन बाई फॉर एम के लिए चलेंगे तो हो जाएगा म्यू एम जी D1 और W बाय एम करेंगे तो माइनस म्यू एम जी D2 होगा। t सेकंड में अलग अलग चला तो नेट वर्क डन अगर हम चले तो D1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन D2 होगा, इसलिए नेट वर्क डन होगा, नेट वर्क डन इज इक्वल टू म्यू D2 इज ग्रेटर देन D1 होगा। तो म्यू एम जी D2 माइनस ही हो गया प्लस म्यू एम जी D1, तो कितना हो जाएगा, म्यू एम जी कॉमन हो गया, D1 माइनस या D2 माइनस D1 माइनस म्यू एम जी, आप मानते हैं D2 माइनस D1 x है तो माइनस नेगेटिव वर्क हुआ, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगा, उसमें जीरो होता है तो पूरे सिस्टम ही कभी जीरो नहीं होता है। 7वां 8वां पॉइंट है कि इसका क्या है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, in the presence of internal force negative of change of potential energy is always equal to work done. In the presence of internal force, negative of change of potential energy is always equal to work done. 9 point क्या है? In the presence of external force, change in total energy is equal to वर्क डन। चेंज इन टोटल एनर्जी वर्क डन के बराबर होगा। 10th क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी is equal to work done, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्स, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। इसी को वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और पॉइंट दे देते हैं तब स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 11 पॉइंट क्या है कि व्हेन 2 and more than 2 forces are applied on a body, work done by a force does not depend on another force, दूसरे फोर्स पर डिपेंड नहीं करता है। अगर हम 2 या 2 से अधिक फोर्स एक ही बॉडी पर लगा रहे हैं तो पहला फोर्स F1 लग रहा है, दूसरा F2 F3, तो जब हम डिस्प्लेसमेंट F1 के कारण X1 हो रहा है तो उसका वर्क डन F1 बराबर W1 बराबर F1 इंटू X1 होगा। अब F2 F3 के बारे में वो नहीं सोचेगा, उसके बारे में क्या हो रहा नहीं हो रहा उसके बारे में नहीं सोचना है। अब इसको एक एग्जांपल से फिर भी हम क्लियर करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। मानते एक बॉडी है जो सस्पेंडेड है जिसका मास m है। F force is applied on our body, T is the tension on the body, mg is the weight. Due to this force, this is pivoted at that point, कोई भी पॉइंट है मान जहाँ इस पॉइंट पर pivoted है।
जिसके कारण ये इधर की ओर चला गया। इसका लेंथ मान लेते हैं कि L है। ये बॉडी यहाँ चला गया, टेंशन इधर लगने लगा, mg इधर अभी भी लग रहा है और F यहाँ पर आकर लग रहा है। There be a body suspended by a string of length L. F force is applied on it so that at equilibrium the block is raised by angle थीटा। तो इस फोर्स के कारण बॉडी में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दिस इज F साइन थीटा, and work done by F is equal to F sin theta, this is L sin theta, sorry, this is L sin theta, L लेंथ है, ये L लेंथ है, ये थीटा है, तो L sin थीटा इंटू L पॉजिटिव वर्क। अब जब हम F फोर्स से कार निकाल रहे तो mg और टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर नहीं रहा। हम बोले कि when two and more than two forces are applied on a body, work done by force does not depend on another force. Work done by a force, किसी by a force does not depend on another force. W अगर mg के कारण निकालना चाहते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहले इस लेवल पर था, ये इतना ऊपर चला गया, तो ये L cos यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस हो गया L cos थीटा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा L माइनस L cos थीटा, L कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस cos थीटा। और ये ऊपर की ओर है, फोर्स नीचे लग रहा है, इसका मतलब हो गया माइनस mg L 1 माइनस cos थीटा, दिस इज नेगेटिव वर्क। तीसरा फोर्स एक और लग रहा है टेंशन, टेंशन के कारण ये डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये हमेशा 90 डिग्री है, तो मानते कुछ भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, टेंशन ये S डिस्प्लेसमेंट हुआ इंटू cos 90 बराबर 0। मतलब 3 फोर्स लग रहा है, तीनों का अलग अलग वर्क डन हो रहा है, तीनों अपने अपने तरीके से वर्क डन निकाल रहा है। वो दूसरे पर डिस्कस नहीं कर रहा, दूसरे के बारे में नहीं सोच रहा, अपना वर्क डन अपने कारण जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बारे में सोच रहा है। और जब टोटल नेट वर्क डन करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा FL साइन थीटा माइनस MGL 1 माइनस cos थीटा, दिस इज द नेट वर्क डन। ऐसा ही कुली में भी होता है। कुली में कुछ लोग बचपन में हम भी पढ़ा दिए थे टीचर हमारे कि वर्क डन बाय द कुली इज ऑलवेज 0। तो कुछ बहस का मैटर भी हम लोग बताता था, कुली कोई काम ही नहीं करता तो हम उसको पैसा क्यों पे करें, ऐसा लोग बैठे बोलते थे। लेकिन ऐसा बात है नहीं। मान लीजिए कुली है, ये इधर S डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इधर की ओर, वेट रखे हुए, इस पर एक फोर्स लग रहा है mg, दूसरा फोर्स लग रहा है n और तीसरा फोर्स लग रहा है F, और ये 180 है। तो वर्क डन बाय n इज 0, थीटा 90, वर्क डन बाय mg 0, थीटा 90, वर्क डन बाय F इज इक्वल टू F इंटू S माइनस F इंटू S, थीटा 180। इस तरह से अलग अलग फोर्स का अलग अलग वर्क डन होता है, फिर नेट वर्क में माइनस FS होता है। तो कुली करता है अगेंस्ट ग्रेविटी, जैसे 1 kg का वेट उठाएंगे माथा पर तो हमको ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अपने माथे के ऊपर 500 kg का फोर्स लगा देंगे तो वर्क डन होगा। वो वर्क डन होने लगेगा। ओके, इस तरह से वर्क डन पर है। वर्क डन अब 10वां पॉइंट था, 12वां पॉइंट है वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। ये शायद 11th पॉइंट था। 12th पॉइंट क्या है, dw इज इक्वल टू F डॉट ds। तो इफ F इज इक्वल टू 4i प्लस 3j, इफ F इज इक्वल टू ds इज इक्वल टू एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट है 2 3 माइनस 2 3 1 माइनस 2 3 1, अब बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 3, या k भी ले सकते हैं इसमें 4k
2 3 1 और बी पॉइंट का है 4 कॉमा -2 कॉमा -1। तो फाइंड द वर्क डन ऐसा पूछ सकता है। तो आपको पहले ए से बी गया, तो ए बी निकालना होगा। ए बी इज इक्वल टू होगा 4i -2j -k -2i प्लस 3j प्लस k। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 4i -6i हो जाएगा, -2j -3j -5j होगा, -k और -k -2k होगा। तो W इज इक्वल टू 4i f डॉट ds, f डॉट ए बी हो जाएगा f इज इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस 4k डॉट 6i -5j -2k। तो 4 6 जगह 24 -15 -8 8 5 13 24 -23 बराबर 1 जूल। इस तरह से वर्क डन होगा। तो डॉट प्रोडक्ट करके भी वर्क डन हो सकता है। अब ये वर्क डन फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है। वेरिएबल जैसे F इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए 12 13। इफ द वर्क डन इज वेरिएबल, 13 पॉइंट है वर्क डन इज वेरिएबल। अगर वर्क डन वेरिएबल हो तब क्या करेंगे? इसके दो कंडीशन हो सकते हैं। मानते हैं कि F इज इक्वल टू दे दें, F इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x ऐसा दे, और d इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 2 तक। तो dw इज इक्वल टू f डॉट dx करेंगे। f बराबर 4x स्क्वायर प्लस 3x dx दे देंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 2 तक। तो w इज इक्वल टू 4x क्यूब बाई 3 प्लस 3x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से लेके 2 तक। तो w इज इक्वल टू 4 इंटू 8 बाई 3 प्लस 3 इंटू 4 बाई 2, कितना हो जाएगा 832 बाई 3 प्लस 12 बाई 2, 32 3 96 और 12 3 36 बाई 6, 6 6 12, 32 दूनी 64 होगा, 6 4 10 9 1 6 3 9 1 10, 100 बाई 6, 33 बाई 2, 17 15 16.5 जूल। इस तरह से आ जाएगा। ये हो गया 3 से कठिन ही रहा है। 50 2 100 और 2 3 3 6 16 3 48 और 2 6 6 होगा, 6 7 जूल। इस तरह से हम वेरिएबल हो सकता है। लेकिन वेरिएबल और भी टफ हो सकता है। ये टाइप 1 अगर हम वेरिएबल ले रहे हैं तो टाइप 2 वेरिएबल भी हो सकता है जो काफी टफ है। जैसे W इज इक्वल टू वाई आई प्लस एक्स जे, F इज इक्वल टू, और फाइंड W 1 1 2 2 2, A से लेकर के B तक जा रहा है 2 2 तक। तो आप W को फिर उसी तरह से कीजिए, इंटीग्रेशन F डॉट dr दीजिए, W ए बी लिखिए, BA लिख सकते हैं, A से B तक गया तो BA, तो B ऊपर लिखेंगे, A नीचे लिखेंगे। F का वैल्यू कितना दिया हुआ है वाई आई प्लस एक्स जे, इंटीग्रेशन A का लिमिट है दिया हुआ 1 1, B का लिमिट दिया हुआ 2 2, इंटू dr के बदले में लिख दीजिए dxi डॉट dxi प्लस dyj, अपने मन से दे दीजिए। इसका कितना हो जाएगा y dx प्लस x dy, इंटीग्रेशन 1 1 से लेकर के 2 2 तक। अब इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, तो हम एक ऐसे टर्म को खोजेंगे जिसका डिफरेंशिएशन ये हो। तो x dxy का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इतना होगा। निकाले कैसे? जब dx को हटा रहे थे तो जो बचा वो लिख दिए, जब dy को हटा रहे थे तो y और को छोड़ के y और dy को छोड़ के जो बचा वो लिख दिए। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, x कांस्टेंट y कांस्टेंट रखते हैं तो x का dx हो जाएगा डिफरेंशिएशन, x को करते हैं तो dy, यानी x y dx प्लस x dy को dxy लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन dxy हो गया 1 1 से लेकर के 2 2 तक। तो ये लिमिट कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन यहाँ 1 है, यहाँ xy है तो xy हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 1 से लेकर के 2 2, 1 1 से लेकर 2 2 तक।
तो 2 दूनी 4 माइनस 1 इंटू 1 1 बराबर 3 जूल आंसर हो जाएगा। तो ये 2 टाइप का वर्क डन हुआ, वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। पहला एक उधर का टाइप का हुआ, एक दूसरे टाइप का ये हुआ। इसमें पूरा आपको खोजना पड़ेगा कि वर्क डन क्या हो सकता है, कैसे इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन हम लें। और भी वर्क डन पर है जिसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो वर्क डन पर कुछ और कंडीशंस बताएंगे और उसके बाद हम एनर्जी चैप्टर में जाएंगे। अगर आपको कोई वर्क डन पर कोई क्वेश्चन होगा, एनर्जी कंजर्वेशन है, ये सब है, 1 क्लास 2 क्लास के बाद ये सब में खत्म हो जाएगा। तो आपको कोई क्वेश्चन वर्क डन पर अगर मिलता है तो हमको दीजिए, भेजिएगा। खास करके एससी वर्मा या सिंगेज से कोई क्वेश्चन मिलता है, अगले क्लास में हो सकता है हम सिंगेज से खोज करके या एससी वर्मा से खोज के कुछ क्वेश्चन रखें और आपको हम बताएंगे। ओके, थैंक यू। आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमको लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।